हेलो बच्चों। आज का हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स रह चुके हैं एंड दे रिक्वेस्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और आप बच्चों, आज आप सबके टॉपिक्स में से मैंने फोटोसिंथेसिस लिया हुआ है एंड उसको हम दो पार्ट्स में ख़त्म करेंगे बिकॉज एज यू नो दैट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, वेरी ब्रॉड एंड कैन नॉट बी कवर्ड इन अ सिंगल video. Okay, now in first part we will discuss about what is photosynthesis, where it occurs, and what is the reactions behind this process. Okay, now first of all we will discuss about what is photosynthesis. As the word say, it is made from two words, that is photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to produce. That means in this process something is producing with the help of light. That means जैसे we are going to example कि जब आप खाना बनाते हो तो आपको किसी हीट की ज़रूरत पड़ती है, आप गैस का इस्तेमाल करते हैं, आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बट प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जाहिर सी बात है वो ग्रो करेंगे, उनकी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें भी खाना चाहिए, जैसे हमें अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए खाना चाहिए। तो वो अपना खाना चूल्हे या गैस पे तो नहीं बनाएंगे, दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis as you have learned in the smaller classes. Now in class 11th, photosynthesis is what? It is the process of the producing food by the plants? No, it is, yeah, definitely it is the definition, but it is the definition of the small classes. आप 7th 8th में अगर definition लिखेंगे तो चल जाएगा कि it is the process of producing food by the plant in presence of light and chlorophyll with the help of water, carbon dioxide, etc. But here in class 11th, you should not write this definition, while the process of the converting light energy into chemical energy. Now what does it means? Light energy is converting into chemical energy in this process of photosynthesis. That means the photosynthesis is the process of converting light energy into chemical energy. Now how it converts? Light means that is the sunlight. We are talking about the sunlight, and chemical energy, that is what? The product of the reaction, that is starch, glucose. Okay, so this is the main and particular definition of the photosynthesis, the conversion of light energy into chemical energy in the form of glucose or starch. Now dear students, here the question is, where does photosynthesis occur? यानी कि photosynthesis कहाँ पे होती है। छोटी क्लासेस में ये आपने जानते हैं ये चीज़ बहुत अच्छे से कि photosynthesis occur in green leaves. photosynthesis कहाँ पे होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये leaves में होती है. But in higher class you should understand that photosynthesis occur in the chloroplast. Where? It is the chloroplast. So what is chloroplast? It is the colored plastid. आपको अगर याद हो तो plant has different types of plastid. Okay, leucoplast, chromoplast and chloroplast. Leucoplast, they are colorless. Chromoplast, they are the colored plastid, and chloroplast, that is the green color plastid. Okay, and it helps in the process of photosynthesis. इसी में photosynthesis होता है. And where they are present? They are present in the stomata of the leaves. As you know, stomata is this like of a structure. They are called the guard cells, which have starch. Okay, and starch that is made with by the process of photosynthesis. And here this is the hole from where the exchange of gases take place. Okay, now here in chloroplast, how the photosynthesis occur? क्लोरोप्लास्ट में photosynthesis होता कैसे है?
First of all, we will discuss about the structure of the chloroplast. Now here we can say that this is the double membrane structure, okay, outer membrane, inner membrane, and now here you can say that this is what? This is the grana, that is the bundle of coin like structure. जैसे सिक्कों को आप एक के ऊपर एक रख देते हैं तो जिस तरह का बंडल बनता है कुछ इसी तरह का बनता है, आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देता है. Yes, the bundle of coin like structure, that is called as grana, and the single bundle is known as the thylakoid membrane, and all the grana are attached to the stroma with the help of stroma lamellae. Here you can say the ribosomes, and this is what? This is the stroma. This is what? This is the stroma, and here the some starch granules also will present as the photosynthesis occur. Now come on the next topic. आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि photosynthesis होती कहाँ है. It occurs in the chloroplast, and chloroplast present कहाँ पे होते हैं? आपके स्टोमेटा में होते हैं. कहाँ पे होते हैं? This is what? This is stomata. Stomata में guard cells में they are present, okay, and which help the which perform the function of the photosynthesis. Now our next question, the concept of photosynthesis. That means कि अचानक से तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं होगा कि हाँ प्लास्टेड जो होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट है which perform the photosynthesis. Some experiments are there. कोई भी खोज, कोई भी invention अचानक से नहीं होता. There is a series of experiments. Now we will discuss about the different experiments related to the photosynthesis. Now, Joseph Priestley was a scientist who done an experiment on photosynthesis. It was the initial of photosynthesis. That means कि photosynthesis की शुरुआत हो रही है यहाँ से. तो there is a series of experiment जैसा कि मैंने आपको बताया है. Now he took the glass jar, and in which he placed a mice. मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता, you can understand, mice. And here he placed a candle. Okay, दो जार उन्होंने लिए, एक में माइस रखा और एक में कैंडल रखा, and he made a close with a lid. इस 2 jars को उन्होंने लिड की सहायता से बंद कर दिया. And he watched that after some time mice die and candle stop to burn. तो इससे उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि कुछ जो ऑक्सीजन है, तब तक ऑक्सीजन की खोज हो चुकी थी, एंड ही रियलाइज्ड दैट ऑक्सीजन जितनी थी वो तब तक वो जिंदा रहे, और उसके बाद जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो जब पूरी ऑक्सीजन को एग्जॉस्ट कर लिया तो कैंडल भी बुझ गई और माइस भी मर गई. नाउ इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट ही प्लेस्ड अ प्लांट. उन्होंने क्या रखा? एक प्लांट भी रखा with mice, okay, and with candle too. उन्होंने क्या रखा? एक प्लांट रख दिया, बंद कर दिया, okay, and he saw what? उन्होंने देखा कि ये जो प्लांट है, जब उन्होंने प्लांट को रख दिया जार में, तब उन्होंने देखा प्लांट में मिट्टी में लगा हुआ, मतलब दैट मीन्स अ पॉट ऑफ प्लांट, नॉट अ सिंगल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज़ अ पॉट ऑफ द प्लांट, यानी कि उसमें मिट्टी है, पानी है और सब कुछ प्लांट मतलब इन द ग्रोइंग फेज. ओके, तो उन्होंने देखा कि इट वो कंटिन्यू टू बर्न एंड वॉज ऑल्सो अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ ही डिसाइडेड दैट ये तो पता है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग एंड ऑल्सो फॉर द लाइफ. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स रिलीज द oxygen. This experiment showed that plant release the oxygen. Okay, now this was the experiment of the Joseph Priestley, but the other scientist, that was the Ebbinghaus. I think I'm missing this spelling. You can check from your book. Ebbinghaus. Now he placed the jar in 2 conditions. What are the 2 conditions? First was the light, and second was the dark condition. Now he said that in light condition
this experiment was happening. That means both the candle were burning and the mice was alive. But in dark, ये एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया. बहुत लंबे समय तक का इन द सेंस कि जब डार्क में प्लांट को रख दिया गया तो इट वाज नॉट परफॉर्मिंग द सम फंक्शन विच रिलीज द ऑक्सीजन, क्योंकि अभी तक ये डिस्कस कंफर्म नहीं हुआ था कि देयर इज अ फोटोसिंथेसिस और एनी अदर थिंग. तो उन्होंने इसका आर्गेनहाउस ने ये बताया कि प्लांट जो है वो लाइट में ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, डार्क में उतनी तेजी से उतनी अच्छी स्पीड से रिलीज नहीं करते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय वॉन नील. कार्लोस वॉन नील वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया. एंड वो एक्सपेरिमेंट क्या था? द वाटर वॉज रिलीज, सॉरी द उनका क्वेश्चन ये था कि ऑक्सीजन ये आ कहाँ से रही है, कैसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के और भी एक्सपेरिमेंट्स कॉन्टीन्यूअस में चल रहे थे, पैरेलली चल रहे थे. तो जैसा कि वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड chlorophyll which form what? Star, that is glucose. Okay, this is the equation, normal equation जो कि अभी हम सिर्फ मान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पानी कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में लीव्स फॉर्म द फूड. लेकिन वॉन नील शोड दैट जो ऑक्सीजन उनके जोसेफ प्रिस्टले या फिर आर्गेनहाउस के एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन जो आ रही थी वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? बिकॉज एज यू कैन सी दैट वाटर हैज़ ऑल्सो द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो हैज़ द ऑक्सीजन. और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये शो किया कि द ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल. Now how? This is the important question. और इसके साथ ही उन्होंने ये फोटोसिंथेसिस का एक यूनिट रिएक्शन भी दिया था, केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. Now what was that? 12 molecule of water plus 6 molecule of carbon dioxide in presence of light. It made 1 molecule of glucose plus 6 molecule of oxygen plus 6 molecule of water. It released by the this is the unit equation of the photosynthesis. Now what is the unit? It happens in the blue-green algae. This experiment done by the एल्गी और ऑर्गेनिज्म जो भी ब्लू ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं. तो वॉन नील ने अपना एक्सपेरिमेंट ब्लू ग्रीन ऑर्गेनिज्म पे दिया था. ओके, तो और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं विच रिलीज द व्हाट, विच रिलीज द सल्फर. ओके, तो एक्सपेरिमेंट वाज व्हाट, दिस वाज दैट. What is A? This is what? कि oxidizing component when combined with the hydrogen. That means यहाँ पे तो water है जो सारे green plants हैं. Okay, but some organism has the sulfur and that is here written as the A. That means कि यहाँ पे H2S जब उनके पास होता है तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो phosphate release होगा, वहाँ पे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा. ओके, दिस इज द यूनिट एक्सपेरिमेंट गिवन बाय द वॉन नील एंड बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द ब्लू ग्रीन ऑर्गेनिज्म. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अच्छा, इतना तो हमें समझ में आ गया कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस यूज होती है, कहाँ पे वर्क करती है, और what was the experiments behind the process or behind the invention of the process of the photosynthesis. Now
अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो किस तरह से परफॉर्म होता है। सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट में ही नहीं होता है। दैट मीन्स इट हैज़ टू फेज। फर्स्ट इज two phase, or you can say the two reactions, that is the light reaction and dark reaction. So what is the light reaction and dark reaction? Light reaction, that means it happens in the presence of light, okay, and dark reaction in it can happen in the absence of light, okay, because the product is maintained in dark area of the chloroplast. That means dark area is what? Dark area, that means the part of the chloroplast which cannot absorb the light, but it form the starch, that is glucose. इसका मतलब अगर यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? अगर ग्लूकोज अंधेरे में हो रहा है तो फिर लाइट की ज़रूरत क्या है? लाइट में काम क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो ज़रूरत किसकी है? हमें फोटोसिंथेसिस हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स? क्योंकि उन्हें ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज अगर डार्क में बन रहा है तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट? लाइट की इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये है कि ये जो है सिलेंडर में गैस भरने का काम करता है, क्योंकि अगर सिलेंडर खाली होगा तो आप खाना बना नहीं पाएंगे। तो सिलेंडर में गैस भरने का काम कौन करता है? लाइट रिएक्शन करता है। लाइट रिएक्शन कैसे ये काम करता है, वी विल डिस्कस हियर। द फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट रिएक्शन को समझने से पहले हम कुछ कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट विच परफॉर्म दिस रिएक्शन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स विच help to absorb the different wavelength of the lights. Now, what are those pigments? Chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, and carotenoids. Okay, the chlorophyll is very important and main pigment in this process, because it has the range of light to it has the range of wavelength to absorb the light. यानी कि ये एक वेवलेंथ के कई रेंज में जो है लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, दूर तक यानी लंबी वेवलेंथ में भी ये लाइट एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पिगमेंट फॉर द photosynthesis. Second is chlorophyll B. It is also the accessory element, and these both are also the accessory element. Now come on the color of these pigment. क्योंकि chromatography is the experiment in which we can learn about the color of the pigment. The chromatographic paper में what are the color of these 4 pigments? In chromatography, chlorophyll A can be seen in the bright green और yellow green color, ठीक है, sorry, blue green color, bright green और blue green in color. Chlorophyll B, it occur in the yellow green, you can say, that means some shade of light. आपने देखा कि पत्तियाँ कई कलर की होती हैं, एक ही पेड़ में पत्तियाँ अलग अलग कलर की होती हैं, कुछ ब्राइट ग्रीन होती है, कुछ थोड़ी डार्क ग्रीन होती है, कुछ येलोइश होती है, कुछ रेडिश होती है. These are all about because of these pigments. Okay, this is the blue green or bright green, this is yellow green type light. Okay, now this is in yellow color or yellow orange, you can say, sorry, only yellow color, not yellow orange, only yellow color, xanthophyll, and they are orange or yellow orange, they are shown in chromatographic paper. Okay, now these are all about the pigments performing the photosynthesis. Now what are their importance? That is, as I told you, that they absorb the sunlight. अगर यही नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे कि आपके पास लाइटर तो है, लेकिन अगर गैस का बर्नर नहीं होगा तो क्या आप आग जला पाओगे?
नहीं जला पाओगे। तो लाइटर तो आपका फोटोन आ रहा है, सनलाइट से फोटोन आ रहा है, लेकिन आपका बर्नर का काम कौन कर रहा है, विच इज रिलीजिंग और विच इज अब्जॉर्बिंग द गैस, LPG, दैट इज क्लोरोफिल और ऑल द पिगमेंट. Okay, how? Because they are what? They are the protein which which have ability to absorb the photon of the sunlight. Okay, now we will discuss about the light reaction of the photosynthesis. अभी हमने इतना देख लिया है कि ये जो पिगमेंट्स होते हैं they have ability to absorb the sunlight. अब जब लाइट हमने एब्जॉर्ब कर ली तो जाहिर सी बात है रिएक्शन आगे बढ़ेगा. और जैसा कि अभी हमने बताया है कि लाइट रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वही एनर्जी आगे चल के क्या करती है, ग्लूकोज बनाने में मदद करती है. तो अब यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होगा, द लाइट रिएक्शन. किसमें होगा, लाइट रिएक्शन में होगा. सबसे पहले ये जान लेते हैं, मैंने बताया लाइट रिएक्शन इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फोटो सिस्टम. कितने टाइप ऑफ, टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, दैट इज PS2 एंड PS1. एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, PS2 एंड PS1 व्हाट, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1. फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 जो है वो अपने जो उनका नंबरिंग पड़ा है वो अपनी डिस्कवरी के नाम पे पड़ा हुआ है. ये ध्यान रखिएगा, अपने एक्सपेरिमेंट रिएक्शन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं पड़ा है उनका नंबर. उनका नंबर पड़ा है उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग. पहले जो है PS1 की डिस्कवरी हुई थी, इस वाले फोटो सिस्टम की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए इसको PS1 दे दिया गया. और बाद में PS2 की डिस्कवरी हुई थी, इसलिए PS2 इसका नाम दे दिया गया. लेकिन लाइट रिएक्शन में पहले परफॉर्म कौन करता है, PS2 पहले परफॉर्म करता है. ओके, नाउ कम ऑन, दिस लाइट रिएक्शन, एज हमने अभी आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सॉरी, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ऑक्सीजन कम फ्रॉम द वाटर. ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पानी से आती है. कैसे आती है, जब पानी जो है वो लाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट होता है, देन इट कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 2 atoms ऑफ द हाइड्रोजन. आपको समझ में आ रहा है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सॉरी, एक ऑक्सीजन का आयन निकलता है, नॉट मॉलिक्यूल, इट इज द फ्री रेडिकल ऑफ द ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम दिस प्रोसेस एंड 2 atoms of the hydrogen ion, or you can say the protons. 2 protons are coming by the splitting of water in presence of light. Now this is very important here to understand that this is only the process in which the water can be split into its component. मतलब यहाँ सिर्फ light, the photon of the sunlight have the capability to split the water into its कंपोनेंट. अभी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं बना पाए हैं साइंटिस्ट जिससे कि हम वाटर को बना तो लेते हैं लेकिन वापस उनके कंपोनेंट में हम तोड़ नहीं पाते हैं. ये सिर्फ होता है इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट. दैट मीन्स हियर इन लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. और इसीलिए ओनली प्लांट कैन प्रोड्यूस द ऑक्सीजन naturally. Okay, now how light reaction happens, this is the photosystem 2 and here the photon coming to the reaction center. What, to the reaction center. और अगर आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि जब किसी कंपाउंड को एनर्जी मिलती है तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एंटर कर जाता है. तो जाहिर सी बात है कि यह फोटोन आ रहा है और यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, इट हैज़ व्हाट, इट हैज़ द वाटर. यहाँ पे क्या है, पानी है. और जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस एंटर करते हैं, तो ये क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है. PS2 यहाँ पे आ जाएगा, PS2, और यू कैन से द आयंस कम हियर इन द एक्साइटेड स्टेट. नाउ दे गो इनटू द other level of the process, that is what, that is here it is
plastocyanin here, which receive the what ions of the PS2, that means the H plus ion. Now here that is the Q cycle, Q1 and Q2 you can see. और यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है वो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस को लेते हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस को स्ट्रोमा से लेते हैं एंड दे रिलीज इनटू द लैमेली ऑफ द स्ट्रोमा. जो लैमेली अभी हमने आपको स्ट्रक्चर में देखी थी तो वो यहाँ से क्या होती है, रिलीज हो जाती है. अभी इसका भी हमको अंदर समझ में आया क्योंकि इसी साइकिल में इसी जगह पे जो है वो एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है. यहीं पे एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है जो कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. इसलिए इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझेंगे. लाइट रिएक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट. And there here that is the plastoquinone and this transfer the electron. Here you can understand that what is exciting is the electron and it is here it is enter into the photosystem 1. अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा हम भूल गए हैं, that is जो अभी हमने मिस कर दिया, that is what photosystem 2 has capability to absorb the light of 680 nanometer. That means what, the short wavelength of the light, that is what 680 nanometer. And here photosystem 1, it has capability to absorb the light of what 700 nanometer. This was missing. 680 nanometer light has PS2 has capability to absorb the light of 680 nanometer and PS1 has capability to absorb the light of what 700 nanometer. 700 nanometer means the longer wavelength than the PS2. They have ability to absorb and यहाँ भी क्या हो रहा है, लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है. 700 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल मैंने पहले बताया था, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज द रिएक्शन सेंटर. क्लोरोफिल ए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट हैज मोर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट देन अदर pigment. That's why chlorophyll A act as the reaction center in this process. तो यहाँ भी रिएक्शन सेंटर दैट इज द क्लोरोफिल ए और यहाँ भी रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. इट इज कंबाइंड बाय द अदर एसेसरी पिगमेंट. ओके, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद हियर ऑल्सो इट कम्स इनटू द एक्साइटेड स्टेट, दैट इज इलेक्ट्रॉन. इट इज कम इनटू द excited state. Now here what happens, it happens here जब excited state में पहुंच जाता है, now it converts the NAD plus ion into what, NADPH. okay, now here you can understand this is the light reaction और यहाँ पे NADPH बन रहा है और here this hydrogen is releasing into the thylakoid lamellae or you can say the stromal lamellae here. और जो आगे अभी next process में we will discuss in the next slide कि हम कैसे यहाँ हाइड्रोजन से एनर्जी कंपाउंड that is called the ATP हम यहाँ बनाने वाले हैं. ATP is what? It is the energy unit. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं. अब डायग्राम में एक चीज आपको दिखाई दे रहा हो, दैट इज व्हाट, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज द Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन सी स्कीम है, Z स्कीम. इसको हम सीधा लिखेंगे, आपको उल्टा दिख रहा है बट दिस इज व्हाट, दिस इज द Z स्कीम. ओके, this is understanding light reaction. This is complete here. I think आपको समझ में आ गया होगा. एक बार इसको रिवाइज करिए, कोई दिक्कत हो तो मैसेज ज़रूर करेंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डार्क रिएक्शन. ओके, और आपको अगर कोई और टॉपिक भी पढ़ने हो तो यू कैन मैसेज मी इन द बॉक्स. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. आई थिंक आपको समझ में आएगा. जो क्वेश्चन होगा यू कैन मैसेज मी. ओके, बाय बाय.